हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। 2 अगस्त 2017 और निफ्टी क्या मैं बोलूं, उसी तरह चली जा रही है जैसे लास्ट 3 दिनों में ये कर रही है। कुछ नहीं करती है, सडनली लास्ट मोमेंट पे आके एक एक मूवमेंट दिखाती है। तो आज ये निफ्टी की रेंज है फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम। लेट मी शो यू। एंड कुछ खास नहीं हो रहा है निफ्टी में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत एकदम नीचे जा रही है। मे बी आरबीआई पॉलिसी की वेट कर रही है या क्या वेट कर रही है। ये मॉर्निंग रेंज थी 15 मिनट्स में। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ pivot point what happened today. Nifty opened up at the pivot point, right? Let me remove these drawings because they are kind of not giving a clear picture. So Nifty opened above the pivot point but उसको hold नहीं कर पाई और नीचे आ गई, and ever since it has been falling down, not as aggressively as it should go down, but नीचे मतलब वही है, indecisive state है, कुछ निफ्टी का अता पता नहीं है, राइट? बट अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं आज बाय साइड में हूँ। मैंने जो ट्रेड्स किए मैं आपको बताती हूँ। आई हैव डन अभी 15 मिनट पहले, 20 मिनट मतलब 1 घंटा पहले हमने ये सीएट का ट्रेड किया है। उसके अलावा हमने ट्रेड किया है एसीसी का। कैन यू सी दीज रॉक सॉलिड bullish candles? These are the, and see the huge buying volumes that have come up. These are the trades that we have on our radar, and also Apollo Tyres. These are the 3 trades that we have done. Here Apollo Tyres, this is 1 minute. I have to make it 15 minutes. These are the 3 trades that we have identified, and excellent, find today. And right now what I can tell you on my radar is Infratel. Wait and watch. There will be something, some kind of a turn you will see in this coming up, and I'm watching Infratel. Okay, so Nifty ki, if you ask me about Nifty, my stance is negative on it. Means I expect it to surely have some kind of a profit booking, and that I'm not telling you by my own mind, but looking into the candles कि कोशिश करती है ऊपर जाने की और लॉन्ग टेल लगा के फिर नीचे आ जाती है, फिर जाने की कोशिश करती है, फिर नीचे आ जाती है, राइट? अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है निफ्टी तो इसको अच्छे से एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें आनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो, जैसे कल 2-3 दिन से ऐसा नहीं हुआ है। कल भी इसने, परसों इसने ये सपोर्ट लिया और वापस चली गई, कल इसने सपोर्ट लिया वापस चली गई लास्ट के हाफ एन आवर में। So I want to show you one thing, on your Google browser, just go and type FII DII activity, okay? And go to the NSE website. So I have got this data for you. I wanted to show you कि FIIs ने कल क्या किया था, बाय किया था 4,515 करोड़ का और सेल किया था 5,461, ऑल पुट टुगेदर, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सब कुछ मिला के बाय वैल्यू ये थी, सेल वैल्यू ये थी, एंड नेट वैल्यू वाज नेगेटिव। Whereas DIs, what they have done in the capital market segment, उन्होंने बाय किया था 4,313 करोड़ का और सेल वैल्यू था 2,922 करोड़ का। सो टोटल डिफरेंस इज बेसिकली नेट वैल्यू जो DIs ने इन्वेस्ट की थी, दैट वाज 1,390 करोड़, which is way beyond, at least 50% higher than what FIIs invested. So that is the reason, even if the FIIs want, they have no power to demolish Indian market. पहले क्या होता था, FIIs ने अपना पैसे ये प्रॉफिट बुकिंग की and we used to fall धड़। Now इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की FIIs ने, DIs ने उसको पुश करके ऊपर भेज दिया, right? So that is how market is holding itself. DIs have got almost, if not, definitely DIs have more power than the FIIs nowadays. Okay, so if you ask me what I have done buy ka trades, and I'll tell you I've done CET, I've done ACC, and I have also bought Torrent Power. Torrent Power was in my radar since yesterday, तो ये भी मैंने खरीद रखा है। And as of now, for future, if you're asking me, I'm keeping Infratel on my radar. I'm looking for an opportunity. The moment I see huge volumes coming in, I probably will go long in Infratel. Okay? And then मैंने जो अपने members को positional trades दे रखे हैं, बलराम चीनी, ठीक है, ये बलराम चीनी का रन अप है आज, huge रन अप, and Pincon मैंने कल YouTube पे भी बोला था, ये Pincon है, right?
कल ये जहां पे भी था उससे आज इसने गैप अप ओपनिंग दी और एक हाइक लगा के आया, ठीक है। और एक जयश्री टी दिया था, वो शायद मैंने अभी यहाँ से हटा दिया है, तो वो मैं फिर से दोबारा नहीं लगा रही हूँ। बट सो यू कैन रियली सी द काइंड ऑफ ट्रेड्स वी आर डूइंग, सच ब्यूटीफुल ट्रेड्स। एंड दिस इज व्हाट, इनमें से मैं आपको बताती हूँ एक चीज और कि सीएट, एसीसी एंड टोरेंट पावर and Balram Chiri, Pincon. None of them is my trade. Pincon is my trade. The rest are all members' trade. They are only giving me the trade and I'm giving it to you. And you can imagine the kind of trades. I told you yesterday, परसों मैंने आपको बताया था कि Honda's power and Thirumalai chemicals. Those were the stocks members have traded. So what I believe कि जो safest आपकी income generate होती है वो generate होती है कैश मार्केट से, बट कई बार कैश नहीं होता लोगों के पास। ये आज थोड़ी सी थिरुमलाई में प्रॉफिट बुकिंग है, बट 2-3 दिन इसने काफी अच्छा रन अप दिया है। एंड कल मेंबर्स ने एस्कॉर्ट्स भी बाय किया था, एंड यू ऑल नो एस्कॉर्ट हैड अ गुड रन अप यस्टरडे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि द वे आई टीच हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक is actually not only me, every single person in my webinar can identify it in the same way, exactly the way I'm telling you. जैसे मैं identify करती हूँ the stocks on the breakout, the way exactly the same way they also find stocks on the breakout, right? So अगर आप लोगों को इस तरह का कुछ सीखना हो, so मैं हर एक segment को cater करती हूँ, whether it is the penny stocks, positional stocks, futures में, options में, cash market में, every segment I teach, and I also teach hugely intraday, right? I really like, these are my intraday trades. ACC is my intraday trade, CET is my intraday trade, and now I'm keeping on my radar infratel. I'm waiting for a breakout. I don't know which direction the breakout may come, but I'm keeping it on my radar. I'm expecting a breakout, right? So these are my trades. And yesterday, members have done trade in Voltas. Yesterday, I haven't done it, but this was the beautiful run up that members have experienced because they all understand how I teach them. And आज का एक और हमारा जो स्टॉक था वो अपोलो टायर्स है, इसने भी एक स्ट्रॉन्ग, एक चीज मैं और आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि आप इसमें बोलिंजर बैंड्स लगाइए और इसमें कितना खूबसूरत स्क्वीज लगा हुआ था, राइट? अगर आपको ये इस तरह का स्क्वीज मिल जाता है ना, मीन्स यू हैव गॉट अ जैकपॉट। उस समय आपको क्या करना है, यू पुट 2 लाइन्स, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, यू जस्ट पुट 2 लाइन्स, एक लाइन यहाँ पे लगाओ आप और एक लाइन यहाँ पे लगाओ आप। जैसी ये लाइन ब्रेक होती है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होती है, उस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड क्रिएट कर दो और आपको फिर MACD RSI का भी सपोर्ट मिल रहा है। देन यू डोंट नीड टू बाय 1 लॉट, you buy 10 lots. You need to create good positions. When you have such a beautiful trade identified, you create a huge position, right? Put your stop losses. ये आपका stop loss हो जाएगा 265. टारगेट आपका आपने परचेज किया 267 पे, 267 अगर आपने 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया तो 4 पॉइंट का टारगेट लगा दीजिए, तो आप 271 इसको आराम से, मैं एक और आराम से कर सकते हैं इसको। तो मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको ट्रेड करना है ना, तो आप कंप्लीट ट्रेड करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने अपोलो टायर का ट्रेड किया आज, ठीक है, तो आप जब बाय करते हैं इसको तो बॉक्स ऑर्डर में बाय करिए, ठीक है। आप इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो आप बॉक्स ऑर्डर में बाय करिए। बॉक्स ऑर्डर इज ऑलवेज इंट्राडे। स्टॉप लॉस 2 पॉइंट्स, टारगेट 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स, जो भी आपको रखना है, एंड बाय आप कर लो। बट इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये कंप्लीट ट्रेड है ना। अगर नीचे जाएगा स्टॉक तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। मगर एक बार आपने ट्रेड ले लिया, देन यू डोंट नीड टू लुक बैक। ये ऑटो पायलट मोड पे है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपके सारे ट्रेड्स ऐसे होने चाहिए, मतलब अगर आपने एक ले लिया ट्रेड, उसके बाद आपको उसको देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आज ये कीरी इंडस्ट्री भी देखिए कितना अच्छा कर रहा है। मैंने आपको परसों दिया था कीरी इंडस्ट्रीज, आज कीरी इंडस्ट्री में भी एक ब्रेकआउट आया है, राइट। सो आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जिनमें ब्रेकआउट आने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू कि आप लोग अगर करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो आपको सीखना चाहिए। और सीखने के लिए आपको कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए आपके सामने
कि क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, कहाँ पे मूवमेंट आने वाला है, किस जगह आने वाला है. वंस यू नो दैट, आपको फिर उसमें लाइक कई लोग बोलते हैं कि हमने इतना पैसा लूज किया, इतना लूज किया, देन यू हैव टू जस्ट put your stop losses and create your correct positions. Once you have done that, you don't have to, once you understand what's happening in the market, then you don't need to worry. Stock market will be your best of the friend. You will really earn good amount of money, right? Now see where SEC Cement is. Whereas this stock has taken a flight. It's still going up. It's still going up and up and up, right? तो ये कैसे आपको पता लगेगा कि ये ब्रेकआउट आने वाला है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये C8 में ब्रेकआउट आने वाला है, वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगी. आई एम गोइंग टू टीच इट इन माय वेबिनार सो दैट यू कैन क्रिएट इंट्राडे पोजीशन. एंड इंट्राडे पोजीशन में स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड होता है, टारगेट वेल डिफाइंड होता है. बाय just pick up your profit and get out of the market. That's how the bracket order works. So with this, what you can do, really, I'm starting on 12th of August, and if you want to understand market, how and where the breakout is coming, what should you do, where should your stop losses be, वैसे तो मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ, जब आप करने लगते हो तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहे हो 1890 पे, तो कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, करीब 17 पॉइंट का हो गया डिफरेंस. तो कम से कम इसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है. अगर हम 1890 पे ले रहे हैं तो हमको यहाँ से, अगर हमने 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, तो कम से कम 34-35 पॉइंट्स हमको ऊपर जाना चाहिए. तो 1890 मींस 34 पॉइंट्स विल मेक इट 1924, राइट, व्हिच इज एग्जैक्टली वेयर इट इज राइट नाउ. इतना पॉइंट, और ये तो उससे भी ऊपर काफी कुछ लगा के आ गया है. तो एटलीस्ट 1.5 टाइम आपका प्रॉफिट होना चाहिए, डबल प्रॉफिट होना चाहिए. 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए आपके पास. ओके, सो दिस इज हाउ. बट सी, ये सब तो आप कर लोगे कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, बट ये कैसे निकालोगे कि इसी स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, वो मैं आपको अपने वेबिनार में बताऊंगी. सो गाइज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कैसे ये स्टॉक ढूंढो, और ये मैं कैसे बताऊंगी आपको, नॉट विद द हेल्प ऑफ अ हाई-फाई सॉफ्टवेयर, जस्ट बाय सिंपल everything which is available on the net, we're going to use that, and from there we will find out the breakouts which are about to happen. So if you want to learn such kind of investment in stock marketing and intraday trading in the stock market, you're very welcome to work with me, and I'm really looking forward. And that's why, as I told you earlier also, कि मैं बहुत बोलती रहती हूँ अपने वेबिनार के बारे में, तो मैं आपको इसके लिए 2-3 रीजन बताती हूँ. इस समय जब मार्केट ऑन होता है, कोई भी आपको वीडियो बना के आपको मतलब nobody will invest their energy and the market time in teaching you, except person like me who's a hardcore teacher, right, and who has a kind of mission कि I need to save people from losing money. Only that kind of a person will do this kind of service. Otherwise, people only make it after market hours, or they work it on Saturday, Sunday. I work out on these techniques, teach you in these techniques when the market is on, right? So the mission here is to give financial literacy to all of you and financial independency to all of you, and that is why I work in the market hours. So guys, if you want to learn market, if you want to be in the market, please learn it completely, and then your stock market is one place. It works in both the direction. ऊपर जा रहा है तब भी आपका पैसा बनेगा, नीचे जा रहा है तब भी आपका पैसा बनेगा. You don't need to worry. You need to only be in the direction of the market. So to understand that, you need to know how to decide that. So let's quickly see what's happening. It is again standing on a support. First support it is standing. If it breaks the support, market will go down. Nifty will go down, right? So I don't know. I am absolutely clueless. अगर अभी फिर भी ऐसा कुछ होता है कि आज DII भी डिसाइड करते हैं, ठीक है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो मार्केट में गो डाउन, बट अभी सपोर्ट पे खड़ी हुई है मार्केट. तो आई वुड से कि इट इज वेरी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, इट्स नॉट निफ्टी ओरिएंटेड मार्केट. सो जस्ट आइडेंटिफाई स्टॉक्स and invest in them. Forget about Nifty for few days until it decides its direction. All the best, guys. Good day. Looking forward to see you at my webinar. Bye bye. Keep texting me. Keep sending me emails. I'll answer all of them. Bye.